Hi, YouTube family. I hope you're having a great day. Let's make it even better by understanding part 2 of the series of complete understanding of hypothesis testing. So, for the ones who are new to my channel, I welcome you and give you a brief about myself. My name is Reema Nair. I have done MCOM. I qualified my UGC NET exam 2 times, and in the year 2020, I got JRF with All India rank 38th in Commerce. The good thing about my videos is that I will be sharing the content which I referred and which helped me in getting JRF and a rank. So do take the advantage and subscribe my channel, and if you wish you can join my Telegram channel. The name is Reema Nair. Okay. So have a look at the content that we will be discussing in the entire series. So what all we did in part 1, we did the conceptual understanding and the definition of hypothesis. We even discussed the meaning of the word hypothesis and the importance, that why do we need it, and 10 types of hypothesis. These 3 things were done in part 1. Okay. And this part 2, we will be doing the procedure in hypothesis testing and the tails of test. These 2 things will be done in today's video, and this part will be done in the upcoming video. Okay, let's begin talking about the process, the steps in hypothesis testing. There are 5 steps for hypothesis testing. इसका ये मतलब है कि आपने लास्ट में जो हाइपोथेसिस बनाया, आपने टेस्ट करना है, या जो आपने बनाया क्या उसको हम एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें. तो टेस्ट करने से पहले हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस. अब कितने हाइपोथेसिस बनाने हैं फर्स्ट स्टेप में? 2, हमेशा 2. ठीक है, एक आपका नल हाइपोथेसिस होगा, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा. यू नीड टू सेट 2 हाइपोथेसिस. One is null and the other one is alternate, which should be mutually exclusive, which means acceptance of one will lead to rejection of the other. इसका ये मतलब है कि अगर आप एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने एक नल हाइपोथेसिस बनाया कि इस पेन की कॉस्ट इज लेस देन 500 रुपीज. इसका एकदम ऑपोजिट मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि इस पेन की कॉस्ट इज मोर देन 500 रुपीज. तो एक की एक्सेप्टेंस विल ऑटोमेटिकली लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द अदर. अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसकी 500 से कम है कॉस्ट, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि इसकी 500 से ज्यादा कॉस्ट नहीं है. सो एक्सेप्टेंस ऑफ वन विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द अदर. So first step, you need to formulate hypothesis. 2 hypotheses, one is null and the other one is alternate. Second step, you need to set up a suitable significance level. अब ये significance level क्या बताता है? ये risk बताता है कि out of certain outcomes आपकी कितनी % chances हो सकते हैं कि आप decision गलत लो. अगर आप अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 5% सिग्निफिकेंस लेवल सेट किया है, विच मीन्स कि आउट ऑफ 100 चांसेस आपके सिर्फ 5 ऐसे चांसेस होंगे जिसमें ऐसा रिस्क होगा कि आपका डिसीजन गलत है. ये बताता है कि क्या रिस्क है. ओके, अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, इट मीन्स that your confidence level is 95%. तो आपको आपका significance level बताता है, it shows the confidence with which we either accept or reject null hypothesis. आप 1% भी ले सकते हैं अपना significance level depending upon the situations. Okay, so significance level talks about what? It reflects the level of risk in making wrong decisions.
This is the second step. Step 3, you need to select the test criteria. ठीक है, which test should we apply? Either parametric test or non-parametric test. So there was a series of statistical tests which we did in the simplest language, which I am sure आपको अच्छे से समझ आएगी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, do not worry, I will be providing the links in the description. Go and watch them if you want to learn about them. Okay, हम ये बताते हैं वहाँ पे कि कौन सी situations में कौन सा टेस्ट applicable हो. Okay, so step 3 is you need to select which type of test should be applied. Step 4, you need to do computations. अब कौन सा टेस्ट आप लगा रहे हैं उसका एक फॉर्मूला होगा. ठीक है, उस फॉर्मूला को आपने अप्लाई करना है और कैलकुलेट करनी है कि क्या वैल्यू आई. सिंपल. स्टेप 4 में you need to apply the formula of the respective test. Now last step, you need to make decisions. अब कैसे? आपने स्टेप 4 से एक वैल्यू को कैलकुलेट किया. इस वैल्यू को हम बोलते हैं कंप्यूटेड वैल्यू. ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू. और एक दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है, विच इज टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू. ये डिपेंड करती है कि आपका क्या टेस्ट 1 टेल है, 2 टेल है, और आपकी सिग्निफिकेंस लेवल क्या है. ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. और इसकी एक वैल्यू होती है क्रिटिकल या टेबल वैल्यू. ये मैक्सिमम वैल्यू होती है. कैसे? जैसे ये आपका ग्राफ बनता है, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब एक दीवार की तरह है. इस दीवार के अंदर अंदर अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो स्टेप 4 से आई है अगर फॉल करे तो आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे. अगर वो वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू इसके बाहर चली जाती है, अगर इसके बाहर चली जाती है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दीज आर द 5 स्टेप्स. अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ, डू नॉट वरी, आई हैव ब्रॉट एन एग्जाम्पल फॉर यू, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. वेरी सिंपल. लुक एट दिस. सो द लाइफ ऑफ अ बैटरी is normally distributed with a mean of 400 hours. ठीक है, and standard error of 3 hours. You changed the production technique, और उससे क्या होता है, that can improve the product. ठीक है, तो आपने असल में भी वो प्रोडक्शन की टेक्निक अपना ली क्योंकि आप मानते थे उससे मेरा प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ेगी. ठीक है, आपने अपना ली. उसके बाद आपने टेस्ट किए सैंपल जिसमें थी 100 बैटरीज, और आपने जाना कि अब जो मीन लाइफ है दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 टू 409 आवर्स, बढ़ गई. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द न्यू बैटरी इज सिग्निफिकेंटली better than the old one using significance level as 0.01 or simply 1%? This is the question. Now we will be following all the 5 steps and reach the conclusion and the decision. Step 1. You need to formulate hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis. ठीक है, so null hypothesis is this, alternate hypothesis is this. null hypothesis आपको क्या बता रहा है? null hypothesis वो होता है जो लोग मानते हैं. ठीक है, that the population mean is equals to 400 hours. alternate hypothesis वो है जो अभी आप मान रहे हैं एज अ रिसर्चर. आपने ये माना अपनी रिसर्च के आधार पे कि अब पॉपुलेशन का मीन 400 नहीं है, वो 400 से ज्यादा हो चुका है. ठीक है, so these are the 2 hypotheses that will be formulated in the first step. Okay, now second step is you need to set up a suitable significance level. It is already given, significance level of 1%. ठीक है, step 3,
select which test should be applicable in this case. Okay, I will give you hints. There is normal distribution, which means यहाँ parametric test लगेगा. दूसरा, सैंपल 30 से ज्यादा है, सैंपल इज ऑफ 100 बैटरीज, 30 से ज्यादा है, इसका मतलब वी विल बी फॉलोइंग जी टेस्ट. ओके, अब स्टेप 4 में हम क्या करते थे? कंप्यूटेशंस. जो टेस्ट फॉलो करेंगी इसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग. अब जी टेस्ट का फॉर्मूला ये होता है सैंपल मीन माइनस population mean, that is mu, divided by standard error. ये तीनों चीजें हमें गिवन है. अब हमारा सैंपल मीन क्या है? दैट इज 409 जो हमने सैंपल से देखा. पॉपुलेशन मीन क्या है? विच वॉज इनिशियल, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर विच इज गिवन ऑफ 3 hours. Okay, which is given of 3 hours. So as a result, the outcome is 3. The answer is 3. 9 divided by 3, answer is 3. तो आपकी वैल्यू क्या आई है? 3. अब देखिए, you have to make a decision whether you have to accept null hypothesis or reject. Now look how. At 0.01 significance level, the table value or the critical value is 2.33. अब बताइए आप, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? देखिए, यहाँ है वैल्यू जो आपकी लाई करती है, मैक्सिमम वैल्यू इज 2.33, लेकिन जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इसके बियॉन्ड है, ये 3 है, ये यहाँ कहीं लाई करेगी. तो विल यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्टेड? यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. सो द कंक्लूजन इज null hypothesis is rejected because the calculated value is more than the critical value or the table value. As a result, you will be accepting alternate hypothesis. Therefore, we can conclude that the new batteries are better than the old one. Null hypothesis वो जो लोग मान रहे थे, अब वो रिजेक्ट हो चुका है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है, जो आप मान रहे थे अब वो लोग भी मानेंगे. ओके, नाउ अब हो सकता है आपको एक कंफ्यूजन आए यहाँ पे कि मैंने सिर्फ ये पोर्शन क्यों लिया, सिर्फ ये टेल को क्यों मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, मैंने ये वाली टेल को यहाँ डिस्प्ले क्यों नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको क्यों रेफर किया. देखिए, यहाँ पे पूछा है हमसे कि हाउ कैन यू कंक्लूड दैट द न्यू बैटरीज आर सिग्निफिकेंटली बेटर, which means the sign, you always have to look at the sign of alternate hypothesis to define or to see कि आपका कौन सा टेल होगा टेस्ट का. Is it right tail test or is it left tail test? And we are doing this topic in detail today. So talking about the tails of the test, we have either one-tailed test or two-tailed test. ठीक है. Now it really depends upon where our rejection region lies. ठीक है, जहाँ rejection region होगा वो accordingly वो tail हमारा tail होगा टेस्ट का. Now have a look at the first statement. It is a hypothesis with two rejection regions. ठीक है, is called two-tailed test. आप देखिए, एक ये टेल है और एक ये टेल है, ये दोनों टेल्स हैं. अगर इसके दोनों साइड पे रिजेक्शन रीजन होगा, मतलब यहां पर भी और यहां पर भी, अगर दोनों साइड रिजेक्शन रीजन है, दैट इज आवर टू टेल्ड टेस्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ हाइपोथेसिस विद ओनली वन रिजेक्शन रीजन इज कॉल्ड वन टेल्ड टेस्ट. अब ये कैसे पता चलेगा कि रिजेक्शन रीजन राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है? हमें ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द साइन ऑफ alternate hypothesis. What is the sign of alternate hypothesis? Let's have a look at case 1. Here you can see this one is our null hypothesis and this one is our alternate hypothesis.
अब आप इसका साइन देखिए, इट इज ग्रेटर देन. When there is greater than sign, it means it is a right-tailed test. और इसका रिजेक्शन रीजन हमारा राइट हैंड साइड होगा. Let's have a look at case 2. We have the sign in alternate hypothesis of less than, L for less than and L for left tailed test. ठीक है, अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन लेस देन है, इसका ये मतलब है कि हमारा रिजेक्शन रीजन इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट टेल. अब लेते हैं केस 3. अब यहां आप देखिए, हमारा जो साइन है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का, इट इज अनइक्वल टू. इसका ये मतलब है या तो ज्यादा हो सकता है, या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या लेस देन हो सकता है. इसमें हम दोनों टेल्स में अपना रिजेक्शन रीजन रखेंगे. ठीक है, हमारा यहां पर भी होगा, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा इन टू टेल्ड टेस्ट. ओके, नाउ आई हैव ब्रॉट अ वेरी समराइज्ड चार्ट which can help you to memorize even better. Here it is. If the sign on right tailed test, आपको कौन सा साइन देखना है हमेशा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का. राइट टेल टेस्ट कब होगा? जब आपका साइन ग्रेटर देन होगा. ठीक है, मतलब आपका रिजेक्शन रीजन फॉल करेगा राइट हैंड साइड को. ठीक है, रिजेक्शन रीजन इज ऑन राइट रीजन. जब आपका ऑल्टरनेट का जो भी साइन होता है, हमेशा उसका ऑपोजिट नल हाइपोथेसिस में होगा. तो यहां ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस में या तो इक्वल्स टू होगा या लेस देन और इक्वल्स टू. नाउ दिस वाज केस 1. दिस इज केस 2 वेयर द लेफ्ट टेल टेस्ट इज टॉक्ड अबाउट. या हम साइन देखते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का लेफ्ट टेल्ड लेस देन. ठीक है, इसका ये मतलब है हमारा रिजेक्शन रीजन विल फॉल इन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, और तो नल हाइपोथेसिस में कौन सा साइन होगा? ऑल्टरनेट का ऑपोजिट, मतलब या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, नाउ दिस इज केस 3 वेयर द टेल ऑफ टेस्ट इज टू टेल्ड. हमारा साइन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का होगा अनइक्वल टू. इसका ये मतलब है कि ऑपोजिट साइन इसका अनइक्वल टू का क्या होता है? इक्वल्स टू, विच विल बी देयर इन नल हाइपोथेसिस. लेकिन हमें सिर्फ साइन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का देखना है. इसका ये मतलब होगा कि मेरा रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा. So this was all in today's video. We discussed that what are the steps that are being followed in hypothesis testing. There are 5 steps, and what are the tails of test. We discussed them in a very simple language. I hope you understood something from today's video. In case it was valuable to you, then do like it, do share your feedback, and do share this video with the ones who actually need it. So keep spreading knowledge. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.